dear learners. How are you all? Welcome back to the new session of Science Class 4, chapter number 2, that is about absorption and the microorganism. So, students, in this session today, first of all, we are going to learn about the concept of teeth. Again, we have two set of teeth in our life, that is milk teeth and permanent teeth. We will discuss about that. We will learn the structure of a tooth, the various methods or the ways by which we can keep care of our teeth, then the different kinds of teeth, the digestive system we are going to learn, and also then we will discuss about some microorganisms or the microbes. All right, let's start the chapter. Teeth are important part of our body. They give shape to our mouth. Teeth seems like white pearls in our mouth. They help us to speak clearly. They help us to bite and chew our food. So we should clean our teeth carefully. What they're saying, very important. टीथ हमारे बॉडी का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है. टीथ हमारे माउथ को एक शेप प्रोवाइड करते हैं. ये हमारे माउथ में वाइट पर्ल्स की तरह दिखते हैं. देन आप क्लियरली बोल पाते हो बिकॉज ऑफ योर टीथ ओनली. ऑलराइट, खाने को बाइट करने के लिए, च्यू करने के लिए टीथ हेल्पफुल होते हैं. तो इसीलिए हमें अपने टीथ को बहुत ही केयरफुली क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए. So basically we have two types of teeth in our life, that is milk teeth and permanent teeth. We all are born without teeth. जब हम born होता है, जब एक new baby born होता है, कि it is without teeth, यानी कि उनके mouth में teeth नहीं होते हैं. Then after 2.5 years के बाद एक child के mouth में about 20 teeth आते हैं, जिन्हें हम temporary teeth और milk teeth कहते हैं. Why? Because ये teeth केवल 2 to 3 years तक ही रहते हैं. After that, at the age of 6, इस 6 around age पे milk teeth start falling. Milk teeth क्या fall होना start होते हैं one by one. And as the milk teeth fall, जैसे जैसे ये milk teeth fall होंगे, new teeth जो है इनके places पे grow करते हैं, which are known as permanent teeth. Why they are known as permanent teeth? Because they remain throughout the life. क्योंकि अब ये teeth आपके throughout the life रहते हैं. टोटल 32 इन नंबर होते हैं परमानेंट टीथ. 16 हमारे अपर जॉ में एंड 16 टीथ इन द लोअर जॉ. These are the types of teeth. Now kinds of teeth. So basically students, 4 different kinds of permanent teeth होते हैं and इन्हें classify किया जाता है according to their function. So let us know about them one by one. First of all, we have incisors, which are also known as cutting teeth. तो टोटल 8 इंसीजर्स इन बोथ जॉज. हमारे माउथ में 8 इंसीजर्स होते हैं, 4 इन द अपर जॉ, 4 इन द लोअर जॉ. ऑलराइट, एंड इन टीथ को हम यूज करते हैं फॉर कटिंग अवर फूड एंड देयरफॉर दे आर आल्सो नोन एज कटिंग टीथ. सेकेंडली वी हैव कैनाइंस, जिन्हें हम पियरिंग टीथ कहते हैं. तो 4 कैनाइंस होते हैं बोथ द जॉज में, यानी कि 2 इन द अपर जॉ, 2 इन द लोअर जॉ. ये काफी शार्प टीथ है और इनको फूड को टीयर करने के लिए यूज किया जाता है. नेक्स्ट वी हैव प्रीमोलर्स और क्रैकिंग टीथ आल्सो. So there are 8 premolars in both the jaws. कितने? टोटल 8 premolars होते हैं दोनों ही jaws में. ये काफी ब्रॉड टीथ हैं जो कि नेक्स्ट टू द कैनाइंस होते हैं एंड इन टीथ के थ्रू आप फूड को क्रैक कर सकते हैं एंड च्यू करते हैं. यू कैन सी दिस इज द premolar, this was incisor and this is canine. Next we have molars or grinding teeth. These are molar teeth, you can see. And total 12 molars होते हैं students in both the jaws. Molars काफी broader, flat and big teeth होते हैं. They have broader upper surface. इनका upper surface भी काफी broad होता है so that ये food को properly chew and grind कर सके. You can see the upper surface of these teeth, it is very broad. Now let's come to parts of our tooth. अब एक tooth के different parts को discuss करते हैं. तो teeth have this basic same structure in all. ठीक है, सभी स्ट्रक्चर अगर बात करें, सभी टीथ का सेम बेसिक स्ट्रक्चर होता है. हर एक टूथ का एक विजिबल पार्ट होता है विच इज कॉल्ड क्राउन एंड एन इनविजिबल पार्ट विच इज कॉल्ड रूट. तो बेसिकली टूथ के 2 पार्ट है. वो पार्ट जो आपको बाहर विजिबल है इसे आप क्राउन कहते हैं एंड टीथ का रिमेनिंग पार्ट जो अंडर द गम होता है, जो विजिबल नहीं होता है, दैट इज नोन एज रूट. द क्राउन इज कवर्ड बाय एनामल.
क्राउन वाला पार्ट जो है उसके ऊपर एक लेयर होती है जिसे आप इनामल कहते हैं। इनामल वाइट कलर की लेयर है एंड ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है ऑफ अवर बॉडी। द लेयर इनसाइड द इनामल दैट फॉर्म्स द मेन पार्ट ऑफ द टूथ इज कॉल्ड डेंटाइन। अब इनामल के नीचे जो लेयर है जो हमारे टूथ का मेन पार्ट बनाती है इट इज नोन एज डेंटाइन। एंड डेंटाइन भी एक बोन की तरह हार्ड होती है। इनसाइड द डेंटाइन, अब डेंटाइन के अंदर पल्प प्रेजेंट होता है जो कि हमारे टूथ का सेंटर होता है। पल्प इज वेरी सॉफ्ट, पल्प काफी सॉफ्ट होता है, फुल ऑफ ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स, उसमें काफी सारी ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स होती हैं। एंड द गम होल्ड्स द टीथ इन देयर प्लेस। एंड जो हमारे गम्स होते हैं, मसूड़े, ये हमारे टीथ को अपने प्लेस पे होल्ड करके रखते हैं। तो दिस इज हाउ द whole structure of a tooth looks like. These are the different parts of a tooth. The next is caring of teeth. So when we eat, what they're saying, जब हम खाना खाते हैं students, small bits of food they may stick between our teeth. Food के छोटे छोटे bits होते हैं जो हमारे teeth के बीच में stick हो जाते हैं. Food particles stuck in spaces that can cause the growth of bacteria and germs. यानी जो फूड पार्टिकल्स हमारे टीथ के बीच में जो स्पेसेस है जो वहाँ पे स्टक हो चुके हैं, ये बाद में वहाँ पे बैक्टीरिया एंड जर्म्स की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। एंड देन दीज बैक्टीरिया एंड जर्म्स, बाद में ये बैक्टीरिया एंड जर्म्स एक स्टिकी येलो कलर की लेयर बनाते हैं विच इज कॉल्ड प्लाक। देन द प्लाक विल स्टार्ट कॉजिंग पेन, बैड स्मेल, टूथेक, ब्लीडिंग गम्स। इस प्लाक की वजह से बाद में पेन होने लगता है, बैड स्मेल माउथ से प्रोड्यूस होती है, टूथ एक यानी कि टूथ में पेन होना शुरू हो जाता है एंड गम से ब्लीडिंग भी होती है। तो वी शुड कीप अवर टीथ बैक्टीरिया एंड जर्म फ्री, इसलिए हमें अपने टीथ को, माउथ को बैक्टीरिया एंड जर्म फ्री रखना चाहिए। हमें अपने टीथ की प्रॉपर केयर करनी चाहिए। कैल्शियम एंड विटामिन सी आर इम्पोर्टेंट फॉर हेल्दी टीथ एंड गम्स। हेल्दी टीथ एंड गम्स के लिए कैल्शियम एंड विटामिन सी काफी इंपॉर्टेंट होता है, तो वी शुड इनटेक देम इन अवर डाइट। सी, so now we can take care of our teeth in the following ways. Number one, we should eat more green vegetables, fruits and salads. ज़्यादा से ज़्यादा green vegetables को, fruits को, salads वगैरह आपको अपनी डाइट में इंक्लूड करना चाहिए। Secondly, chewing food improves blood flow in the gums. जब आप प्रॉपरली फूड को च्यू करते हैं तो उससे गम्स में ब्लड फ्लो भी आपका इम्प्रूव होता है, इसीलिए you should chew our food properly. Then we must brush our teeth twice a day. राइट, व्हाट दे से कि आपको एक दिन में अपने टीथ 2 बार ब्रश करने चाहिए। ऑलवेज फ्लॉस टू क्लीन बिटवीन द टीथ, टीथ के बीच में क्लीन करने के लिए फ्लॉस करना चाहिए हमेशा। एंड बहुत ज़्यादा स्वीट्स, चॉकलेट्स या सॉफ्ट ड्रिंक्स को आपको कंज्यूम नहीं करना है। एंड वी मस्ट विजिट अवर डेंटिस्ट रेगुलरली। So this was all about the teeth. And the next topic which we have is that is the digestive system. So this is the whole digestive system of a human being which looks like. So the food that we eat does not give energy directly to our body, it gives energy after digestion. And digestion is a process in which the food we eat is broken down into simpler soluble substance that is absorbed by the body. और this students कि जो खाना हम खाते हैं उस खाने से हमें डायरेक्टली एनर्जी नहीं मिलती है, उस खाने का हमारी बॉडी में जाके डाइजेशन होना ज़रूरी है। डाइजेशन क्या है? डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे जो फूड आप खाते हो उसे सिंपल एंड सोल्यूबल सब्सटेंस में ब्रेक किया जाता है सो दैट हमारी बॉडी उसे इजीली एब्जॉर्ब कर सके। उसके बाद उस डाइजेस्टेड फूड को हमारी बॉडी में जो ब्लड है वो एब्जॉर्ब करता है एंड बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक उस एब्जॉर्ब फूड को लेकर जाया जाता है। our digestive system, हमारा digestive system क्या है? It is made up of many organs. Alright, हर एक organ का एक specific function है। They have given you this figure which shows the human digestive system and its different organs. ठीक है, हमारा digestive system start हो जाता है from the mouth. Mouth से food जाता है food pipe में and food pipe से stomach में, stomach से it goes to the small intestine जहाँ पे liver and pancreas जैसे ऑर्गन्स भी अपने सिक्रेशंस को रिलीज करते हैं। देन फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, देन इन द रेक्टम एंड देन द वेस्ट इज एक्सक्रीटेड आउट थ्रू द पार्ट नोन एज एनस। So first of all, mouth. The teeth in our mouth grind the food into smaller pieces. सबसे पहले हमारे माउथ में जो टीथ हैं
वो फूड को छोटे छोटे पीसेस में ग्राइंड करते हैं एंड माउथ में जो सलाइवा प्रेजेंट है वो फूड को सॉफ्ट एंड मॉइस्ट बनाता है सो दैट हम उसे इजिली swallow कर सके इनसाइड अवर बॉडी। सेकेंडली फूड पाइप का फंक्शन है, दिस इज द फूड पाइप जो माउथ को कनेक्ट करता है विद द स्टमक एंड इस फूड पाइप का काम है फूड को क्या करना, माउथ से लेकर जाना कहाँ तक, स्टमक पर। राइट, एंड इस फूड पाइप को भी कॉल्ड एसोफेगस ऑल्सो। देन नेक्स्ट वी हैव स्टमक। फ्रॉम द फूड पाइप द फूड इज कलेक्टेड इन अ बैग लाइक स्ट्रक्चर। अब फूड पाइप से फूड को एक बैग लाइक स्ट्रक्चर में कलेक्ट किया जाता है एंड यहाँ जाके फूड को चर्न किया जाता है, मिक्स किया जाता है विद द डाइजेस्टिव जूसेस। Next is small intestine. The food is partly digested as it enters the small intestine. अब जब फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में एंटर करता है तब वो फूड पार्टली यानी कि पार्शियली डाइजेस्टेड होता है। इसके बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर मोर डाइजेस्टिव जूसेस को ऐड किया जाता है एंड देन फूड का डाइजेशन प्रोसेस कंप्लीट होता है इन द स्मॉल इंटेस्टाइन ओनली। इट इज इन लिक्विड फॉर्म एंड कैन एंटर द ब्लड। एंड अब यहाँ जाने के बाद जब फूड कम्प्लीटली डाइजेस्ट हो जाता है और फूड लिक्विड फॉर्म में आ जाता है एंड देन ये ब्लड के अंदर एंटर कर सकता है। लिवर क्या है, लिवर एक जूस प्रोड्यूस करता है जिसका एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है इन द डाइजेशन ऑफ। नेक्स्ट इज लार्ज इंटेस्टाइन। नाउ द अनडाइजेस्टेड फूड। अब जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है। यहाँ पे क्या होता है, द मोस्ट ऑफ द वाटर इज एब्जॉर्ब फ्रॉम द फूड। ओके, फूड में जितना भी वाटर है, ज़्यादातर वाटर सारा लार्ज इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है एंड फिर अनडाइजेस्टेड फूड जो है उसे रेक्टम में पास कर दिया जाता है। रेक्टम के थ्रू जो अनडाइजेस्टेड फूड है उसे स्टोर किया जाता है बिफोर बीइंग थ्रोन आउट ऑफ द बॉडी थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड एनएस। यानी कि सबसे पहले जो जितना भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो स्टोर रहता है रेक्टम में एंड देन उसके बाद एनएस एक ओपनिंग है, इसके थ्रू सारा वेस्ट हमारी बॉडी से रिमूव कर दिया जाता है। This is how the whole digestion process takes place. And around 24 hours is taken by our body to digest the food completely. फूड को कम्प्लीटली डाइजेस्ट करने के लिए हमारे बॉडी करीबन 24 आवर्स का टाइम पीरियड कंज्यूम कर। नेक्स्ट इज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। अब बात करते हैं कुछ अच्छी ईटिंग हैबिट्स की। As we all know कि healthy food is essential for good health. So therefore, we must follow healthy eating habits. Number one, we must take 4 to 5 meals a day. एक डे में हमें 4 to 5 meals जरूर लेनी चाहिए। Secondly, chew the food properly and do not swallow it as a food. फूड को प्रॉपरली आपको च्यू करना चाहिए, कभी भी एक साथ ही सारा फूड swallow नहीं करना है। थर्ड, वी मस्ट वॉश अवर हैंड्स एंड माउथ बिफोर एंड आफ्टर एवरी मील। अपने हैंड्स अपने माउथ को प्रॉपरली हर एक मील लेने से पहले और लेने के बाद वॉश करना चाहिए। देन वी मस्ट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स डेली इन अवर फूड। डेली आपको अपनी डाइट में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जरूर खाने चाहिए। अपनी हर एक मील में रफेज का यूज करना है। हमेशा क्लीन, फ्रेश एंड वेल कुक्ड फूड खाना है। एंड ऑल्सो वी मस्ट ईट अ बैलेंस्ड डाइट। डू नॉट ईट व्हेन यू आर एंग्री और अपसेट। अगर आप गुस्सा हो, उदास हो तो कभी भी आपको उस टाइम पे खाना नहीं खाना चाहिए। नेक्स्ट वी हैव व्हाट, माइक्रोब्स। नाउ व्हाट आर माइक्रोब्स? माइक्रोब्स आर वेरी स्मॉल ऑर्गेनिजम्स। बहुत ही ज्यादा छोटे ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दे आर नोन एज माइक्रोब्स। सुने से इतने छोटे हैं कि हम इन्हें अपनी नेकेड आइज के थ्रू नहीं देख सकते। दे कैन नॉट बी सीन थ्रू द नेकेड आइज। दे आर ओनली विजिबल। ये कब विजिबल होंगे? जब आप इन्हें एक इंस्ट्रूमेंट के थ्रू ऑब्जर्व करोगे विच इज नोन एज माइक्रोस्कोप। तो बेसिकली माइक्रोब्स जो हैं यूजफुल एंड हार्मफुल दोनों हो सकते हैं। कुछ हार्मफुल माइक्रोब्स जो होते हैं दे कॉज डिजीजेस, इनकी वजह से बीमारियां होती हैं। बेसिकली 4 टाइप्स के हार्मफुल माइक्रोब्स होते हैं। नंबर 1, फंगाई। फंगाई ग्रोज ऑन डिकेइंग मटेरियल। फंगाई कहाँ? जो डिकेइंग मटेरियल्स होते हैं वहां पे ग्रो करते हैं, जैसे कि ब्रेड, पिकल एक्सेट्रा। एंड इससे रिंगवॉर्म, एथलीट फूट एक्सेट्रा ऐसी डिजीजेस हो सकती है। सेकेंडली वी हैव वायरसेस। वायरसेस भी क्या है? दे आर ऑल्सो स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स ओनली एंड इनसे कॉमन कोल्ड, पोलियो, फीवर, इन्फ्लुएंजा एक्सेट्रा ये सारी डिजीजेस आर कॉज्ड बाय द वायरस। थर्ड वी हैव बैक्टीरिया। बैक्टीरिया सिंगल सेल स्मॉल ऑर्गेनिज्म है
जिनसे टाइफाइड, कॉलरा, ट्यूबरकुलोसिस, निमोनिया एक्सेट्रा ऐसी डिजीजेस होती है। तो लास्ट यहाँ प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ भी सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है एंड ये फूड पॉइजनिंग, मलेरिया, डाइजेंट्री एक्सेट्रा दे कैन कॉज। बट सम ऑफ द माइक्रोब्स आर यूजफुल ऑल्सो। अब स्टूडेंट्स कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं जो यूजफुल भी है, जैसे कि कुछ माइक्रोब्स मिल्क को कर्ड में चेंज करते हैं और कुछ ऐसे हैं जो मेडिसिन की फॉर्मेशन में हेल्पफुल हैं। ब्रेड, बन्स एंड कुछ अदर फूड आइटम्स हैं जिन्हें हम बैक्टीरिया की हेल्प से ही प्रिपेयर करते हैं। बैक्टीरिया ऑल्सो हेल्प इन कीपिंग द एनवायरनमेंट क्लीन एंड इसके साथ साथ बैक्टीरिया हमारे एनवायरनमेंट को क्लीन रखने में भी हेल्पफुल है। तो इस तरीके से दो डिफरेंट टाइप्स के बैक्टीरियाज होते हैं डिपेंडिंग ऑन देयर फंक्शन, राइट, डिपेंडिंग ऑन देयर एक्शन। That's all for the chapter. It's completed over here, and I hope the chapter was very clear to you. Let's meet in the next session with a new and exciting topic, and then keep going well. And thanks to everyone.